Good morning friends. Today we discuss about the drift velocity, relaxation time, that is the symbol is tau, and relation between electric field and drift velocity, relation between current and drift velocity. So first we discuss about the drift velocity. So in that case, what do you mean by drifting? Drifting means when we are in the for this electron, it experience a force in the opposite direction. That is called drifting. Suppose I am giving the example. This is the metallic conductor, and in the metallic conductor, free electrons are there. They are randomly moving, and positive charge that are immobile. These electrons are randomly moving. Therefore, the drift velocity, here we have not connected any battery, means in the absence of electric field, these all electrons are moving randomly. That's why the average velocity of these electrons, all the electrons is equal to 0. That's why the acceleration is equal to 0 and there is no drifting. Here all electrons are moving randomly because first this electron is supposed in this direction, this electron is this direction, and means all the electrons are randomly moving and the velocity of all the electrons will cancel out each other. That's why the average velocity is equal to 0, and velocity equal to 0 means average velocity of all electrons is equal to 0, I equal to 1 to n. It is called for the absence of electric field. But when we are applying a potential difference, this is in case of the also acceleration of all the I equal to 1 to n. This is Vi and this is SL. The average velocity is equal to 0. Average acceleration is equal to 0 in case of absence of electric field. This is the case for absence of electric field. Electric field is equal to 0. Electric field is equal to 0 means we have not connected any battery. When we apply the electric field is not equal to 0. Same case. Electrons are randomly moving, but when we apply the external battery, then all the electrons are moving in a particular one direction. Here the positive terminal of the battery attracts all the electrons towards the left hand side, and these all electrons are moving now not randomly, but they have a particular flow in this direction. So average velocity is equal to not 0, therefore acceleration is equal to not 0. In this case, electron experience a drift in the opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉजिटिव बैटरी का टर्म में ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक फोर्स मिलता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज हो जाता है. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक है, वो ऐसे मूव कर रहा है रैंडमली, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा. यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये पाथ जो है वो ड्रिफ्टिंग इस साइड मिला है तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा. यानी ये जो एक्स्ट्रा पाथ जो है दोनों का जो चेंज हुआ उसका पाथ, ये बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ये कंडक्टर को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ ड्रिफ्टिंग, and this velocity gained by this electron is known as drift velocity. तो drift velocity की definition हम कंसीडर करेंगे, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन. सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड होता है. सपोज यहाँ पे कंसीडर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड होता है तो उसकी वेलोसिटी v1 है. उसके बाद यहाँ से कोलाइड होने के बाद उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, v2 हो जाती है यहाँ पे. तो एवरेज वेलोसिटी जो है
V bar is equal to V1 plus V2 plus dash 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 Vn upon n. This is called average velocity is not equal to 0, and this is known as drift velocity. It is represented by Vd. This is called the drift velocity, and drift velocity it is given by this, and acceleration is given by E. Acceleration is equal to Vd into tau. Vd into tau. So acceleration is defined as Vd की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर करें. एक्सेलरेशन जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो F इक्वल टू m इंटू ई. यहाँ पे आपको पता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ये होगी ई डिवाइडेड बाय m. ये जो है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो आपको मिलेगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ई अपॉन m इज इक्वल टू टाउ इनटू Vd. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से आप देख सकते हो. Vd इज इक्वल टू ई अपॉन m अपॉन टाउ. ये उसका Vd का जो एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हो. सॉरी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाउ. यहाँ पे टाउ डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे इनटू. तो Vd इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E कैपिटल E, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m is the mass of electron and tau is the relaxation. What is relaxation time? So relaxation time is the time, average time taken by this electron. It is the average time taken by this electron between two successive collision. यहाँ पे एक collision हुआ, दूसरा collision, दोनों के बीच में जो time लगता है उसका average t1 plus t2 by 2, that is known as relaxation time tau. फिर से समझ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हुआ. Vd इज इक्वल टू ई अपॉन m इंटू टाउ. टाउ ये रिलैक्सेशन टाइम है. टाइम का जो सेकंड यूनिट आता है वही टाइम यहाँ पे, उसको रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारा कोलिजन करने वाला है. तो ये यहाँ से यहाँ कोलिजन करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन, तो उसका टाइम t1 समझ लो. या उसके बाद वो वापस दूसरे इलेक्ट्रॉन तो उसका t2. तो t1 प्लस t2 जितने भी बार वो कोलिजन करेगा वो एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन जो है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. ऐसे वो धीरे धीरे करके रेस्ट में आएगा, उसके पहले का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है. 10⁻⁻14 सेकंड में रिलैक्सेशन टाइम होता है. -4 यानी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है. हम सोचते हैं ऐसा नहीं है. तो ये जो है वो हमारा सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई. ये रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी आपने देख लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन जो है वो यहाँ तक हमने देखा है. तो उसके बाद हम करंट की बात करेंगे. तो करंट जो है हमें जो रिलेशन डिराइव करना है वो करंट का हमें ये ऐसा रिलेशन जो है वो डिराइव करना है. तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो आप लिख सकते हो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to E upon m इलेक्ट्रॉन का मास इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम. अभी ये रिलेशन डिराइव करना है. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो रिलेशन ऐसा है I is equal to NEA Vd, और Vd का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो NEA Vd का ये एक्सप्रेशन E टाउ बाय m. तो आंसर आपको मिलेगा n स्क्वायर a e टाउ बाय m. तो हमें यही देखना है कि पहले तो ये रिलेशन कहाँ से है, बस इतना ही देखना. बाकी तो Vd का जो रिलेशन आया था वो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो आपका आंसर जो है करंट का ये रिलेशन जो है वो मिल जाएगा. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये वाला है हमें लाना है. और ये भी आप उसके रिलैक्सेशन टाइम के बीच में करंट और रिलैक्सेशन टाइम पूछा है तो ये रिलेशन कहाँ से आया. तो आपको बेसिक इक्वेशन पता है I इज इक्वल टू Q/T. तो Q इक्वल टू NE वो भी पता है आपको. ये जो है तो यहाँ पे यही देखना है कि Q इक्वल टू NE. तो कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर जो है उसकी लेंथ L है
और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट वो सभी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, एरिया इनटू लेंथ जितना वॉल्यूम है। तो आपको टोटल जो है करंट क्या होगा, तो टोटल करंट जो है यहाँ पे n इंटू ई एरिया इंटू लेंथ a इंटू एल मल्टीप्लाई इतने वॉल्यूम में। फिर से हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो v मीटर क्यूब, v वॉल्यूम जितना है और v वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, इतना वॉल्यूम जो है v मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो n इनटू v हो गए। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है n की वैल्यू, n इनटू v, n a इनटू l, और टोटल चार्ज देखना है। ये तो नंबर ऑफ हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर, और उसके अंदर चार्ज कितना है तो उसके साथ e मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपको मिला है वो आपको क्या मिला है, टोटल चार्ज मिला q। ये केस में, जनरल केस में q जो है वो n ही है, पर यहाँ पे कंडक्टर के केस में ये q इक्वल टू n a l इंटू e, और उसके बाद टाइम से डिवाइड करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखेंगे I इज इक्वल टू q बाई t, तो q की वैल्यू n a l e, l जो है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस l अपॉन टाउ, ये होता है। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, vd इंटू टाउ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे l की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, vd इंटू टाउ रखता हूँ, n a vd इंटू टाउ डिवाइडेड बाय e ऑन टाइम। तो टाइम कैंसिल हो गया, तो करंट का वैल्यू जो है ये n e a vd, करंट I इज इक्वल टू n e a vd। n ये नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने आज जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि मेटल जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली ओरिएंट करते हैं जब तक हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, और रैंडम इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, कोई एक डायरेक्शन में जाएगा कोई अपोजिट, तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। वो केस में आपको आंसर एक्सेलरेशन का भी जीरो मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। पर जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं वायर को, ये कंडक्टर को, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली नहीं होंगे, उसके बाद सब एक फ्लो में होंगे, और उसके बाद हमें ये सब एक्सप्रेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल सकता है। थैंक यू।